Assalamu alaikum students, lecture number 1, chapter number 1, introduction to biology. So firstly, the questions related to the living organisms and non-living organisms, that is differentiate between living organisms and non-living organisms. As all of you will answer about the living organisms which can move and the non-living things organisms which cannot move. Along with this difference, there is also many differences about living organisms and non-living organisms, is that living organisms use energy, can reproduce energy, and living organism further can reproduce and produce fertile offsprings like, and non-living organisms which don't use energy and cannot move and don't reproduce. Similarly, what is science? Science basically is the study in which we observe anything and then perform experiments and then draw the different conclusions, and it is the scientific knowledge of anything. Basically, it is the scientific knowledge of living organism. So the scientific knowledge of living organism is non we study this in biology. So today's topic is introduction to biology, and biology is derived from the two Greek words. Number one is bios and number two is logos, and bios meaning life and the logos means thought. So it is the study in which we thought about the living organism. बेसिकली क्या है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में थॉट जो है उसको हम किस में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, उसके बारे में जो हम थॉट है उसको क्या कहते हैं, डेट इज़ बियोलॉजी. नेक्स्ट इज द biology is the scientific study of life, and the word biology has been derived from two Greek words. Bios means life and the logos means thought or reasoning. Next is the divisions of biology. There are three main divisions. Number one is zoology, number two is botany, number three is microbiology. Zoology is the study of animals and botany is the study of plants, while microbiology is the study of microorganisms. जोलॉजी में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स को. जोलॉजी जू से वर्ड डिराइव हुआ है, तो जू में क्या है, एनिमल्स होते हैं. सो आपने यहाँ से याद रखना है कि जोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड माइक्रोबियोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा. So zoology division of biology deals with the study of animals, botany division of biology deals with the study of plants, and microbiology division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria. Basically these are the divisions, and there are only three divisions of biology. Next is the branches of biology, and there are many branches of biology. Number one is morphology. Morphology is the branch deals with the study of form and structure of living organisms. इसका क्या मतलब है कि morphology किसी भी living organism के structure और उसकी फॉर्म, कि वो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, उसकी क्या फॉर्म है, उसकी क्या शेप है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट इज द एनाटॉमी. एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा. एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमंस ले लें, ठीक है, तो ह्यूमंस के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं हमारे internal structures, and that is heart, liver, pancreas, intestine, etc. So study of all these structures will be known as anatomy. Next is the histology. Histology is the microscopic study of tissues. As all of you know that cells combine together and they form the tissue. So study of specialized tissue is known as histology. And all of you know about there are many types of tissues are present in our body: epithelial tissue, squamous tissue, nervous tissue, etc. So study of tissue is known as histology. Next is the cell biology. Cell biology is the structure and functions of cells and cell organelles is called cell biology. एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बेसिक यूनिट है डेट इज सेल. ऑल ऑफ यू नो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. सो सेल का स्ट्रक्चर, के सेल किस तरह का है, उसकी शेप क्या है, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल बोन सेल्स, स्किन सेल, नर्व सेल, कैंसर सेल्स, ठीक है.
तो अब ये जो सारे सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा और इन सब का फंक्शन भी डिफरेंट है। जैसे कि बोन सेल्स जो हैं वो हमारी बोन्स में प्रेजेंट है और स्किन सेल्स हमारी स्किन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनके फंक्शंस भी क्या हैं, डिफरेंट। सो स्टडी ऑफ their structure and function of cells and the cell organelle is known as cell biology, and this branch also deals with the study of cell division, कि जो सेल है वो फर्दर हमने पढ़ा हुआ है कि सेल क्या है, डिवाइड करता है टू टाइप्स हैं उसकी, डेट इज नंबर 1 इज माइटोसिस, नंबर 2 इज मियोसिस। सो द cell division is also studied in the cell biology. Next is the physiology. This branch deals with the study of the functions of different parts of living organisms, कि क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे ऑर्गन्स क्या है, जो स्टोमक है डेट इज़ इन्वॉल्व इन द डाइजेशन, ठीक है। इस तरह सिमिलरली आवर हार्ट इज़ पंपिंग ऑफ ब्लड, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पंपिंग ऑफ ब्लड। तो ये सब क्या है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करें। तो किसी भी फंक्शन को, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट के फंक्शन को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। Next is the genetics and the study of genes and their role in inheritance is called genetics. And inheritance means the transmission of characters from one generation to another. जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जीन्स को। जीन्स किस लिए इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे होते हैं, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर बेसिकली जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे ट्रेट जो हैं हमारी बॉडी के, वो उनको कौन कंट्रोल करे, हमारे जीन्स कंट्रोल करें। फॉर एग्जांपल अवर हेयर कलर, हमारा हेयर कलर अगर ब्लैक है तो इस ब्लैक कलर के पीछे हमारे क्या हैं, जीन्स हैं। कुछ लोगों के ब्लैक हेयर्स होते हैं और कुछ के क्या होते हैं, ब्राउन। तो वो जो जीन्स हैं वो क्या कर रही हैं, उस कलर को, उस करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रही हैं बेसिकली। इसी तरह कुछ लोगों की आइज़ जो हैं वो क्या होती हैं, ब्लैक होती हैं, कुछ की ब्राउन होती हैं। तो सो देयर इज स्पेसिफिकली अ जीन ऑन योर chromosome that is controlling the color of your eye. So study of gene and their role in inheritance is known as genetics. And inheritance, what is inheritance? Inheritance is the transmission of character from one parent, from one generation to other. इसका क्या मतलब है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में फर्दर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होती हैं। जैसे कि क्या है कि अगर एक पेरेंट का जो आई कलर है वो क्या है, ब्लैक है, दूसरे पेरेंट जो है उनका क्या है, ब्राउन कलर है। तो अब जो इंडिविजुअल है ऑफ स्प्रिंग है उसके पास क्या आ गया है, ब्राउन कलर, ठीक है। तो क्या है, एक पेरेंट से वो जो ब्राउन कलर था वो ट्रांसमिट हो गया नेक्स्ट जनरेशन में। दिस इज नॉन एज इनहेरिटेंस. Next is the embryology. It is the study of development of an embryo to new individual. क्या है कि सबसे पहले होती है फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote forms and after some time zygote transforms into the embryo and then embryo develops and form a new individual. So the development of embryo into a new individual is known as embryology. Next is the taxonomy. It is the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups. कि क्या है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इतनी ज़्यादा कैटेगरीज है, इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं, तो क्या है कि उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या कर दिया हुआ है, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया हुआ है और उस क्लासिफिकेशन के बाद उनके कुछ नेम्स दे दिए हुए हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्लास है इंसेक्ट्स, ठीक है, कुछ है हमारे पास बर्ड्स, उसके बाद कुछ हमारे पास क्या है, एनिमल्स हैं, ठीक है, लाइक स्नेक्स हैं, ठीक है, उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास इतने ज़्यादा ग्रुप्स हैं और ये सब है तो एनिमल्स ना। तो अब हमने इन सबको आइडेंटिफाई, क्योंकि इनकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, तो हमने इनको क्लासीफाई कर दिया। सो द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज नॉन एज टेक्सोनॉमी. Next is the paleontology. It is the study of fossils which are the remains of extinct organisms. Paleontology क्या है कि इसमें हम वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल डायनासोर जो कि पहले बहुत सदियों पहले था और अब वो क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं। तो उसकी जो बाकी उसकी जो बॉडी के कुछ बॉडी तो उसकी इसी और अर्थ पे रह गई है ना, तो उसके जो रिमेन्स है इस बॉडी के, इस सरफेस के ऊपर, अर्थ के ऊपर, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फॉसिल्स में. सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नॉन एज पैलेंटोलॉजी. नेक्स्ट इज द entomology. Entomology is the study of insects.
Next is environmental biology. It deals with the study of the interactions between the organisms and their environment. इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन है, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बियोलॉजी में. नेक्स्ट इज द सोशियो बियोलॉजी. ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज. क्या है कि एनिमल्स का आपस में भी रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो वो जो आपस में उनका बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेट इज सोशियो बियोलॉजी. नेक्स्ट इज द पैरासाइटोलॉजी. As all of you know about the parasites, parasites are the small organisms that take food and shelter from the living host and in return harm them. कि parasites क्या हैं, वो small organisms हैं जो host की body के अंदर रहते हैं या उसकी body के ऊपर रहते हैं और उससे वो food लेते हैं और क्या लेते हैं, shelter लेते हैं और बदले में उसको क्या करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं. जैसे कि क्या है, लाइस, लीच, देर आर फॉर एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज़ द बैक्टीरिया, वायरसेस. क्या आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, वो आपको क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी से वो ले रहे हैं नरिशमेंट, तो वो ले रहे हैं, शेल्टर भी उन्हें मिल रहा है, लेकिन आपकी बॉडी को उल्टा वो क्या कर रहे हैं, बदले में नुकसान पहुंचा रहे हैं. Next is the biotechnology. It deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. कि biotechnology, bio means living and technology is the process. इसमें होता क्या है बेसिकली कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके एक ऐसी यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द बैक्टीरिया इज़ प्रिपेयरिंग द इंसुलिन. क्या है कि हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, उसकी बॉडी के, उसकी जीन्स के अंदर इंसुलिन की जीन को इंसर्ट करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं कल्चर मीडियम में और वो डिवाइड करता है, और वो डिवाइड करता है तो क्या बनती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है. अब वो इंसुलिन हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम मार्केट में सप्लाई करते हैं, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंसुलिन के तौर पर हम जो है वो मार्केट में सेल करते हैं और वही इंसुलिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स यूज़ करते हैं. सो वो जो हम इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा रहे हैं बैक्टीरिया को यूज़ करके, डेट इज़ द टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. Next is immunology. Immunology is the study of immune system of animals which defends the body against invading microbes. इम्यूनोलॉजी में हम किसी भी एनिमल्स के इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं जो क्या करता है, बाहर से आने वाले कोई भी माइक्रोब, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अगेंस्ट क्या करता है, आपकी बॉडी को डिफेंड करता है, ठीक है. तो इम्यून सिस्टम बेसिकली आपका कैसे बनता है, आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी का जो प्रोसेसेस हैं, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस, that is the immune system. Next is the pharmacology. It is the study of drugs and the effect of the system of human body. फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स, कोई भी हमारे पास जो ड्रग्स हैं उसकी कंपोजिशन को बेसिकली हम उसको स्टडी करें, तो ड्रग की स्टडी में हम उसकी कंपोजिशन के, वो किन किन केमिकल से मिलके बनी है, उस क्या क्या चीज़ उसमें कितनी कितनी ऐड है, ठीक है, और उसके अलावा हम क्या करते हैं कि उसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि ह्यूमन की जो बॉडी है उसके ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट है. डेट इज़ फार्माकोलॉजी. Next topic is the Quran and biology. There is a relationship between Quran and biology because in the Quran, related to many, there are many verses related to the living organisms, and Allah has give us many hints about the origins and characteristics of living organism. For example, number one is we made every living thing from water. कि क्या है कि कुरान पाक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की से रिलेटेड बहुत सी हिंट्स दी गई हैं और अल्लाह पाक ने कहा है कि इंसान को गौर फिक्र करने का. सो फर्स्ट जो हमारे पास सूरा है, डेट इज सूरा अंबिया, वर्स नंबर 30, एंड ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न अबाउट द वर्स नंबर एंड द सूरा एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दीज वर्सेस. वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर. क्या मतलब है कि हमने लिविंग थिंग्स जो हैं उनको हमने कहाँ से पैदा किया, पानी से बनाया. एंड ऑल ऑफ यू नो अबाउट दी that all living organisms consist, all organisms body consist of 60 to 70% of water. कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसका 60 to 70% जो पोर्शन है वो किस पे कंसिस्ट कर रहा है, पानी पे, ठीक है, वो वाटर से मिलके बना है. एंड द अबव वर्स हिंट्स एट द कॉमन ओरिजिन ऑफ लिविंग थिंग्स इन वाटर. ये क्या था, कॉमन ओरिजिन के कहाँ से ओरिजिन हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. नेक्स्ट इज द सूरह अल मोमिनून, वर्स नंबर 14.
then fashioned with the drop or clot, then fashioned with the clot a little lump, then fashioned with the little lump bones, then clotted the bones with flesh. इसका क्या मतलब है कि फिर हमने इस पानी की बूंद को खून की पटक किया, फिर खून की फटक को गोश्त की बोटी, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियों पर। इसका क्या मतलब है इस वर्ष का कि सबसे पहले क्या था, खून बनाया गया और खून से के बाद क्या है, गोश्त बनाया गया और उसके बाद जो है गोश्त के बाद हड्डियां बनाई गई। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके वो कंसिस्ट कर रहे हैं क्या है, ब्लड है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, क्लॉट है, देन देयर आर मैनी बोन्स। तो आपकी बॉडी में यही कुछ प्रेजेंट है ना, गोश्त प्रेजेंट है। ठीक है, वो अब हड्डियां हैं, उसके अलावा क्या है, आपका ब्लड है। नेक्स्ट इज अल्लाह ऑल्सो हिंट्स एट द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के कैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो डिवेल्प हुए थे। अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर bellies, others walk on two legs and others on four. Allah creates what he pleases. सूरह अल-नूर वर्स नंबर 45। कि इसमें कहा गया है कि जो अल्लाह पाक ने जो एनिमल्स हैं उनको क्रिएट किया है कहाँ से, पानी से। उनमें से कुछ जो है वो क्या है, अपनी बेलीज के ऊपर रेंगते हैं, जैसे कि स्नेक है। ठीक है, वो क्या है, रेंगता है। कुछ जो है वो दो टांगों पर चलते हैं और कुछ क्या है, चार टांगों पर चलते हैं। एंड अल्लाह हैज़ क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस। सो in these all these verses Allah has give us the hints about the origin and modification of organisms and also supports the modern concept of classification कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उसका ओरिजिन कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था और उसकी डेवलपमेंट जो है लाइफ की वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि अल्लाह पाक ने पानी से इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहाँ से पैदा किया है, कहाँ से बनाया है, पानी से। देन पानी की बूंद जो है वो खून में कन्वर्ट होगी, देन खून से क्या बना, गोश्त, एंड गोश्त जो है के बाद हड्डियाँ। ठीक है, एंड देन Allah had created every living animal from water, then some of them creep over their bellies, others walk on two legs and others on four, and Allah creates what he pleases. So today we have study about the divisions of biology. There are three divisions: zoology, botany, and microbiology. Zoology, study of animals; botany, study of plants; microbiology, study of microorganisms. Then the branches of biology: morphology, anatomy, histology, cell biology, physiology, genetics, embryology, taxonomy, paleontology, entomology, environmental biology. And next is the Quran and biology, that is the relation between Quran and biology, living organisms formation with reference to the Quran, that living organisms are made up from water, and all of you know that 60 to 70% of the body consists of all living organisms. And also man, Allah has created man from clay like the potter, that is Surah Rahman verse number 14. Then fashioned with the drop a clot, then fashioned with the clot a little lump, then fashioned with the little lump bones, then clotted the bones with flesh. Next is Allah has created every animal from water, then some of them creep up over their bellies, others walk on two legs and others on four. Allah creates what he pleases. All these branches and divisions are a short question, and the Quran and biology is a short plus long question, and all of you have to learn all these verses, their verse number and surah number also. Today's diary is learn the division of biology plus Quran of biology, page number 2, 3 and 6. Thank you.